Among the different countries present on the physical map of the world, India is a land of endless charm, endless mysticism, and endless spiritualism. Symbolizing unity in diversity, India symbolizes a place where religion and spirituality is harmonically blended with materialistic culture. Spiritual and materialistic, heavenly and mundane, and it is the last resort of all those nomads who travel far and wide in search of peace, solace, and heavenly bliss. It gives refuge to all those who search for meditation and nirvana, that is, freedom from the pains and sorrows, agonies and sadness that is surrounding the world. Ma Ganga, originating in the mid-Himalayas from the Glomuk glaciers, Ganga flows incessantly and can be aptly called the lifeline of Indian culture. Ganga signifies the cultural strength of India, and Ganga runs in the veins of culture. Ganga is India, and India is Ganga. साधु जो साधे सो साधु, जो अपने शरीर को साधता है, अपनी इच्छाओं का दमन करता है, वो साधु है। उसका ये उद्देश्य है परहित, दूसरे का हित करके अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरों का कल्याण करना, ये काम साधु का है। India has been adorned by diverse culture and is also known as the country of festivals and religious ceremonies. One of such festivals is Kumbh Mela or Kumbh Fair. Kumbh Mela has the distinction of being mentioned in the Guinness Book of World Records as the largest congregation of people for the same purpose. When Jupiter enters Aquarius and Sun goes to Aries, it is considered to be an auspicious time and the Kumbh Fair falls. साधु कुंभ मेला भरता है जो, तो वेदों का कथन है कि जब गंगा दुनिया के पाप धोती है, और गंगा के पाप कौन धोता है कोई, तो वो ऋषि मुनि जब इसमें स्नान करते हैं तब उसके बाद गंगा पवित्र हो जाती है। उसका पाप जो है ऋषि मुनि के ऊपर वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और ऋषि मुनि जो हैं वो पाप पुण्य से रहित हैं। उनकी तपस्या योग में इतना होता है कि वो पाप पुण्य से रहित होते हैं। इसलिए गंगा में स्नान करने का महत्व, इसीलिए पहला स्नान हमारा नांगा बाबा का इसलिए है कि गंगा मैया शुद्ध हो जाए। क्यों दुनिया पाप धोती है, यहाँ हर आदमी पाप धोने की इच्छा से आता है कि भाई हमारी माता यहाँ कल्याण करो, हमारा इस शरीर को आगे जो है सो मुक्ति मिले। Every 12th year, the famous Kumbh Mela organized at Haridwar, the famous religious city of India, in which millions of people take a holy dip in the Ganga. आदि का ध्यान रखें, ऐसा ना हो आपकी लापरवाही का लाभ उठाकर कोई आपको नुकसान। Astrologers fix some dates for the auspicious bath or the snans. अथवा धूप जला के रखना वर्जित है। Har Ki Pauri is the main center of attraction, where devotees, sadhus, saints, people from foreign countries are coming and taking a holy dip in the sacred river, Mother Ganga. The Naga sadhus flock to this place. They belong to different sects.
Royal baths or Shahi Snan are reserved for sadhus or saints who come in great number. The ash-covered Naga sadhus remain naked because they have renounced all worldly comforts and dress code. Only ash is their dress. As the historical records prove, these Naga sadhus were deputed by Adi Shankaracharya as protector of religion or dharma. Self-penance, meditation, and difficult worship has been their style of living. आत्मानंद जी महाराज जी के शिष्य ओंकार रूपम त्रहिमति चपलम यस्य रूपम तुरीयम त्रैगुण्यातीत नीलम कलयति मनसा तेजसिंधूरमूर्ति. Peculiar sadhus, dressed or naked, have really worked hard to attain the revered status. A sadhu has kept his hand raised for so many years. साधु का उपदेश होता है समाज के अंदर प्रचार करना धर्म का, और जहाँ पर धर्म की अवहेलना की जाती है वहाँ पर जो है ना उन्होंने अपना बताना पड़ता है भाई धर्म के क्या बात है, धर्म की आप क्यों रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्यों? और मनुष्य के बारे में बताएंगे भाई मनुष्य को क्या करना चाहिए, इंसान अगर आपको बना दिया तो आपका ड्यूटी क्या है. ये किसी उद्देश्य से साधना नहीं की जाती है. ये साधना प्राचीन युग की तपस्या है. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में ऊर्ध्वभाव तपस्या की हुई है, और वही परंपरा की तपस्या को हम लोग निभाते जा रहे हैं. कोई उपमनी होता है, खड़ेश्वरी होता है, कोई पवनाहारी, कोई दूधाधारी होता है, कोई फल खाता है, कोई दूध पीता है, समझे ना, कोई रोटी खाता है. तो ये महात्मा के अपने अपने क्रम होते हैं. का जीवन का जो उद्देश्य है कि जनता के हित के लिए प्रचार करना है. साधु वही है जो कर्म करता है और कर्म के द्वारा गृहस्थ को प्रेरित करता है कि अपने धर्म की रक्षा करो. नागा सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए साधु होते हैं, धर्म को प्रचार करते हैं, धर्म को रक्षक करते हैं, भिन्न भिन्न भागों में धर्म को प्रचार करते हैं. इनके पूरे परमात्मा से कांटेक्ट होता है. इनको हर कदम पे सोच विचार करके बातें लेना होता है. भूर्ज तरु इव संत कृपाला ऊपर हित लागे से विपति विशाला. संत हमेशा परोपकार के लिए बना जाता है. मैं तो छोटे से भक्ति मार्ग में चलता था, छोटे से बचपन से भक्ति मार्ग में चलता था. उम्र जाएगा तो भक्ति ज़्यादा बढ़ाया, तो बढ़ा के सबको सच से सबको मैं 8-5 से मैंने प्रेम से मिला था. मैं सच से चलता था. भारतीय संस्कृति में आचार को प्राधान्यता दी है, और उसी निमित्त से क्या है, जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है वो सोचता है कि हमारी आत्मा का कल्याण चल लेवे, और बार बार मनुष्य जन्म मिलता नहीं है, इसीलिए अपना उद्देश्य बदल के ने वो गृहस्थाश्रम छोड़ के अपना संन्यास धारण कर लेता है. क्या महात्मा तो संत महात्मा होते हैं, ये तो परमार्थ करते हैं, परमार्थ के कारण साधु शरीर धरते हैं. हम जो है देश को जगाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, परमात्मा से ही उनको जोड़ते हैं. परमात्मा से जुड़ो. Driver or Gadi Sadhu stands and drives an unbelievable feat. Mysterious but peaceful.
1940 में जन्म लिया। उसके बाद 1956 में मैं गया बॉम्बे में 2 साल रहा। उसके बाद हरिद्वार आया। हरिद्वार से भी मैं संन्यास लेके, संन्यास में थानापति लक्ष्मण जी महाराज मिले। कोई भी साधु मिलता था मेरे को चेला बन जा। थानापति लक्ष्मण जी महाराज जब भी आते थे उन्होंने चेला बन जा बोल कर नहीं बोलते थे। तो एक दिन अचानक में हम ही बोला कि महाराज जो भी आते हम साधुओं का सेवा करते थे। मेरा दादा भी करता था, मैं भी करते आया, मेरे बेटा मेरा भाई भी कर रहा है ना। तो हम लोग आ जाते थे साधु। लक्ष्मण जी महाराज हमको नहीं बोलते थे चेला बन जा। उनके ऐसे उनको मैं बोला बाबा जी समझो ने बोला अब नहीं बोलेंगे। बोला मैंने हमारा दिल तो पत्थर वाला आदमी चाहिए। ठीक है, उनकी बात मान के वहाँ से उनके आशीर्वाद लिया। उज्जैन के कुंभ में जाके मैं नागा बना। वहाँ से सीधा निकल के मैं 3 साल तपस्या करा। अब उसके बाद में मैं आया काठमांडू में अनक्षेत्र चलाया हूँ। वहाँ से नागा बाबा शिवगिरी हुआ। और वो बोल लगा तो हम बैठ गए। क्यों? हेलो फोटो संसारी जीवन में इसमें उसमें तेरा मेरा इसमें अपना अपना है। संसारी जीवन में तेरा मेरा है। या भाई बहन में बोलो, या औरत मर्द में बोलो, भाई बेटी में बोलो, है ना, बाप बेटे में बोलो, ये तेरा मेरा है। संसारी ये साधु जीवन में क्या है, सब अपना है। मैं आधी रोटी खाते खाते मैं किसी को खिला सकता हूँ। गृहस्थी में खाने के लिए मेरे को देखना पड़ता है। सर मैं गृहस्थी खिलाए तो दूसरे मेरे को रोटी को देखना पड़ता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। सन्यासी में ऐसा नहीं है। आज गृहस्थी है, रोगी है 3 टाइम खाता, भोगी है 2 टाइम खाता, सन्यासी 1 टाइम खाता। मेरे को क्या खाना है या नहीं है मतलब नहीं है ना। इसके लिए 1 मिनट देना है ना। इसके लिए ये मेरे को ये जरूरी नहीं है कि भाई मेरे परिवार ठीक ठाक है, मेरे खाने ही होना, मेरे पीने ही होना, वो नहीं है। संसार में उसमें गृहस्थी में 2 टाइम खाना चाहिए, 1 टाइम नाश्ता करना चाहिए और कपड़े अच्छे पहनना चाहिए। हर जगह जाने, हर जगह में देखना चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए, सबको झुकना चाहिए। अब इसमें क्या आजादपन चाहिए। क्यों सिर्फ एक ईश्वर का नाम से डरता हूँ, भाई किसी को नहीं डरता। माँ बाप तो आप ही ये जन्म दिए, कर्म नहीं दिए, कर्म में पूरे संभाल रहा हूँ। जैसा बैंक बैलेंस में 1000 रुपया होगा तो तुमको 950 यूज कर सकते हैं आप। वो जब मैं भजन का पूरे दिन करके लाइए, भजन में ये बाप रहा, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे आनंद मंगल में इसमें देख के महाखुशी हूँ। सुबह मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ, नहा धो लेता हूँ। उसके बाद एक चिलम एक चाय पीता हूँ। उसके बाद मैं 6:30-7 बजे गाड़ी निकालता हूँ। 12 साढ़े 12 बजे 100, 150, 200, 50, 25, 5, 10, 2, आधा किलोमीटर जाके गाड़ी रोक देता हूँ। फिर इसके बाद 2 घंटा 1.5 घंटा मस्ती से आराम करता हूँ। फिर 2 बजे एक चिलम चाय पिया, फिर निकाला, फिर 5, साढ़े 3 बजे तक फिर एक जगह 100-125 में रोक देता हूँ। फिर इसके बाद एक चिलम चाय पिया, फिर 5, सवा 5, साढ़े 5 तक भगाता हूँ। 5:30 बजे किनारा रख दिया, फिर एक चिलम पानी पिया, फिर बैठ गया। 8 बजे नहा 1-2 चिलम पिया, 10, साढ़े 10 बजे नाश्ता जो भी मिला खा लिया, आराम से सो गया। रोज का 300 किलोमीटर एवरेज मेरा है। लेकिन 300 से 3 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, आधा किलोमीटर भी हो सकता है, 25 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी रोक सकता हूँ। पाबंदी नहीं है। आरटीओ वाले हैं, चुंगी वाले, डीजल वाले, पेट्रोल पंप वाले हैं, एडवोकेट है, इन लोगों के पास जाके कलेक्शन कर लेता हूँ। ला भैया मेरे पास पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन लोगों का मुट्ठी भर दे देते, उन लोगों से ले लेता हूँ, चल लेता हूँ। ट्रक वाले हैं, हरियाणा के ट्रक वाले या यूपी के ट्रक वाले मिल जाते हैं प्रेमी, तो चिलम पानी पिया, रात को 11 बजे तक, 10 बजे 10-10 बजे मीट हो जाते। 3 बजे उनके साथ चिलम पानी पिए, 3 बजे पाइप निकाल के डीजल भर देते। बाबा तो आगे पीछे 10 बजे तक चला। 10 बजे के बाद में उन्हें भी सो रहा, हम भी सो रहे, गाड़ी किनारे रख दे। गाड़ी धोने वाले उन्हें मिल जाते, डीजल नहीं है तो डालने वाले उन्हें मिल जाते, मैं पेट्रोल नहीं है तो उन लोग डाल देते। कभी कभी पैसा नहीं है तो इटाली से कहना ना। एक मेरे चेला है ऑस्ट्रेलिया में, कर्मा, वो हर साल मेरे को 1.5 लाख रुपया वो भेजता है। पहले एक जगह नौकरी करता था, आज भगवान की दया से अपना होटल बना के बैठा हुआ है।
हर साल फ़ोन करने से मेरे को $800 $600 हर साल, अभी भी मेरे को $600 भेजने के लिए बोला है। वो एक इटाली की एक लड़की है, इटालियन मरिया पिया माँ की, वो साइकोलॉजी वर्कशॉप में NGO है, कन्याकुमारी में है ना। वो लड़की थोड़ा बहुत देती है। मेरा एक चेला पशुपति गिरी है नेपाल में, मेरा अंचल चलता है, 1972 से चल रहा है, वहाँ से थोड़ा बहुत आ जाता है। इसमें मेरे को यहाँ वहाँ मांगना नहीं पड़ता है। कहीं कहीं किसी को आवश्यकता दे जाता है, दूसरे साल आए बार तो मन भर के देते, वो लेके चलता हूँ। मेरे को कन्याकुमारी से नेपाल जाना है या कश्मीर जाना है तो 7 रास्ता, एक मदुरई पड़ेगा, एक बार पड़ेगा हैदराबाद, एक पड़ेगा नागपुर, एक पड़ेगा दिल्ली। ये 5 रास्ते पड़ते 7 रास्ते। तो इसके लिए मेरे को कन्याकुमारी से या नेपाल जाओ या कश्मीर जाओ तो हैदराबाद पड़ जाता है। एक टाइम में मेरी माँ मेरे को एक टाइम में माँ से भिक्षा लेने के लिए एक टाइम गया। उसके बाद मैं अचानक मैं जा रहा था मोटरसाइकिल में, मेरे भाई की लड़की की शादी थी, उस टाइम एक टाइम गया। और जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस टाइम में मैं इटाली में था। मैं 2 दिन पहले उड़ गया और 2 दिन बाद में उन्हें शेड्यूल पूरा करा। उसके बाद अभी मैं परसों में मेरा भाई का लड़का कहीं बाहर विदेश में रहता है, कहाँ रहता नहीं मालूम है। उसने उन्हें आए तो हम लोग को देखने के लिए उस टाइम में जा रहे थे। तो हम लोग इलाहाबाद से 4 दिन पहले उनमें हम लोग पहुँचे थे। उनसे 2 घंटा बात करके निकला। जो 1956 अभी तक 1960 से अभी तक 4 या 5 या 6 वक्त गया होगा, 7 वक्त गया होगा वोट से। इसका ये नहीं है। 2000 का दे दिया, 2000 का दे रहा हूँ। बाकी जो भी होगा शादी में उसमें मेरे को जंजाल में फंसा हुआ जैसा लगता है। अभी मेरा भाई है, अच्छा कमाता है, अच्छा रहता है, फिर भी जंजाल में फंसा हुआ है। ये है कमी है, वो कमी है, शरीर की कमी है, धन की कमी है, ये हुआ वो हर चीज़ में कमी बताते रहते। मेरा भाई ने कोई गिरफ्त किया था, बाबा ये चीज़ में कमी है, ये चीज़ में कमी है, या संतान में कमी है, या संतान नहीं हुआ, यही कमी ना। साधु जीवन में कोई कमी नहीं, सब भरपूर है। जिसको कोई कमी है यही भभूत उड़ा के देता हूँ, उनका पूरा हो रहा है, ये संतोष है समझता हूँ। लेकिन तड़पे उन लोग, जैसा बिना बदली का पानी तड़पता उन लोग का तड़पे, लेकिन तड़पे तो दया में उस टाइम में मेरे मन में नहीं आया। अभी भी दया में नहीं आता मेरे मन में। मैं दया में छोड़ के मैं सन्यासी बनाऊँ, सर्वनाशी बनाऊँ। दया में रहता तो मैं सन्यासी नहीं बनता। जिसके बाद दया में नहीं होगा वही सन्यासी बनेगा। माँ 9 महीने पेट में रखी है, खून को दूध बना के पिलाई है, टट्टी पीछा भर के इतना बड़ा करी है, उसको लात मारने के लिए कसाई बने तो ही काम होगा, कसाई नहीं बने तो नहीं होगा। इसके लिए मन को कसाई बना दिया। माँ तड़पती है, रोती है। तो मैंने जो 4 दिन पहले भी मम्मा याद कर ली थी। तो मैं 2 दिन पहले इटाली में था, 2 दिन पहले उड़ गया था इटाली में, 2 दिन के बाद में मालूम पड़ा। After Kumbh Mela, I go in Ukraine. I speak English very small. Namaste. मेरा नाम Anton. I like India very much. It is a holy place for me. The best country. I'm first time in India, and it is not last time. And I feel myself here. So my name is Victoria Olenek. I live in Belgium. This is Eugenie Naminani. She lives in Canada. And this is Irina Zayas. She lives also in Belgium. They're my friends. Europe is now at a stage where people have lost faith in the institution of church, in the Catholic Church mainly. This has been going on for years, so now
you see a lot of sects forming, or a lot of spiritual organizations which take place and under all kinds of names. If the yogi is real, if it's not about making money and doing big advertising, well, that kind of priest I can trust. You know, they have a problem of trust in institution, but there is always need for spirituality. Maybe it's a good thing that Europeans can turn towards something like this, towards India, and only to find out, like I found out, and like people I know, that our God is also pretty compatible with their gods. You know, there's parallels between what they have and what we have. The practice of yoga, the exercise, you know, it's something that is very easy to do. It doesn't require too much mental mental a little bit, but physical strain. It's safe, and that's good for everyone. My name is Dirk. I'm coming from Germany, the area around Cologne. This is Midwest in Germany. And yeah, I'm here in Kumbh Mela because I'm part of a Kriya Yoga Association coming from Canada, but it's giving lectures all around the world. And my approach is to widen and my spirituality and making me more open-hearted, because you know, in Kumbh Mela you have a lot of saints coming from very far distances and also from the Himalayas, and this is a big opportunity because only happening once in 12 years to meet such enlightened people, and they can give you a lot of advices and help you on your way. So this is not just a touristical stuff here, it is all about widen and open up yourself, and it's a journey. It is more an inner journey than an external journey for all of us. So we are also doing lectures here on this camp. We have an own tent, and we are doing asanas, so lectures every day, and meditation, and also breathing techniques and sort of this. Yeah. And also meeting a lot of these people here around, maybe the Naga Babas. There's a naked saints from the Himalaya. Very interesting people, very natural and very open-hearted, like a small child. Very interesting. I'm from Russia. My name is Svetlana. I come from Haridwar to Kumbh Mela. I like sadhu. I want to be free. My name is Alexander Stepanets. I am from Russia, Moscow. I come in India to Kumbh Mela, and I come to Baba because I like Baba, I trust Baba, I trust that Baba is the most spiritual souls, most spiritual existence in this world, and they bear great knowledge and great power. I want to get this power with them. That's why and to be free. That's why I come to Kumbh Mela, and now I am learning deeply life of sadhu. I am going to become sadhu, Baba. Problem? Yeah. I am from Japan. Why became sadhu? I want to my Guruji practice knowledge, jnana chahiye. So I make Baba Chella. I want happy, just happy and truth. Sadhu is good, and happy make happy. No, one sadhu, many people happy. My Guruji giving happy, everybody happy, everybody eating something. Only goodness, only holy work. थोड़ा कम कर दो।
I belongs to South India, and I came here to take a North Indian tradition initiation of the sannyasa because I like Indian tradition. So I choose my life to lead a spiritual life. एक तो माँ बाप जन्म के जाएंगे पूरे का संस्कार से भी साधु बनता है, एक अपने शौक के लिए साधु बनता है, एक अपना मन को धक्का खा के भी साधु बनता है। ये कोई प्रॉब्लम हुआ, उनका कोई संस्कार है या कोई प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद अपने देश से इधर आए भाई हिंदू धर्म में क्या पावर है, हिंदू धर्म में क्या चीज़ है। इन लोग का एक पत्थर की मूर्ति है, उसमें बोलता ना चालता, इन लोग का घी भी लगाते, तेल भी लगाते, टीका भी लगाते, सर भी फोड़ लेते, मत्था भी देते, ये है क्या? तो वो विश्वास है। तो हम लोग का प्रैक्टिकल नॉलेज छोटे, उन लोग का प्रैक्टिकल नॉलेज पकड़ रहे हैं। हम हिंदू धर्म को जरा पीछे कर रहे हैं, उन लोग आगे कर रहे हैं। इसके लिए उसके मन में आया हिंदू धर्म में कोई पावर है, इसके लिए हिंदू धर्म में साधु बनने से हमारा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। उन्हें 20 साल 22 साल स्कूल गया हुआ है, माँ बाप उसके लिखे पढ़ा हुआ है, वो भी PhD कुछ पढ़ा हुआ है, उसमें मन में आया कि भाई ये कुछ नहीं है, ये मोह माया एक ड्रामाबाजी है। जैसे खेल के अंदर एक जोकर रखने से कैसा खेल होता है, भगवान ने हमको एक पत्थर बना के एक खिलौना डाल के डाल दिया है। इसके लोग देख लिया भाई इसमें कुछ नहीं है, भजन में जितना शक्ति है ये परिवार में कुछ नहीं है। उन्हें 24 साल 30 साल की उम्र में उन्होंने क्या कर दिया कि मैं साधु बनने से कोई हमको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सही है गलत है नहीं मालूम। विश्वास पूरा है, विश्वास में धोखाधड़ी है, अटल विश्वास है। विश्वास में हम धोखाधड़ है, लेकिन उसको अटल विश्वास है। जैसा यार भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, 4 दिन हो गया तो नहीं हो रहा, आज होना चाहिए भाई। तुम डांट के बोले तो चलो वो आज ही कर देगा। अरे भाई आज कर दे, कल कर दे भाई, कल कर दे, हटा दिए। वो तो हम लोग का हंसी हंसी में निकाल दे रहे, वो लोग अटल विश्वास रखिए। हम लोग का विश्वास रखिए, वो तो अटल विश्वास रखिए। इसके लिए उनको इन लोग मैं भाई इटालियन ने खेली है, कनाडा में भी है, USA में ही है ना, ऐसे तो 7 कंट्री में मेरे पास है, चले लो। देखो हिंदू धर्म में क्या तुम्हारे वेस्टर्न पीपुल है, फुल पावर, नो टॉयलेट नो शावर, गर्म पानी भी है ठंडा पानी भी है, लेकिन सुबह टॉयलेट नहीं जाता है, दिन में नहीं जाता है, और रात को आगे तो गर्म पानी से नहाएगा उसके बाद टॉयलेट जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गर्म पानी हो या नहीं हो, या ठंडा पानी हो या नहीं हो, नाला भी कोई ना हो, नाले में जाके नहा लेता है। नित्य नादम दीजिए आदम पंडित नादम पके पके, वो शरीर को शुद्ध करते हैं। जैसे कुंभ के मेले में आते मन शुद्ध हो जाता है। हम लोग रोज घर में नहा रहे हैं, शरीर का शुद्ध हो रहा है, और हम लोग तीर्थ यात्रा में पंडित के साथ नहला रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मन शुद्ध होता है। उनकी एक भावना नेत्र में एक जोत है, इनकी भावना वहाँ लग रही है। जैसा मैं पहले ही बोला ना, चुम्बक जो है ना लवे को पकड़ा, तांबा पित्तल सोना चांदी को नहीं पकड़ेगा, उनकी भावना उसमें है। उनकी आंखों की जोत लग रही है कि इसके अंदर घुसने से हमको कुछ प्राप्त हो रहा है। मैं जो तो मेरे दुनिया 10-10 20 चेले बना, मैं चेले नहीं बना, 2 4 5 चेले बनाए, वही मस्त है। Need you hard. You know hard atma. Chandu mantra. खाना का भी पहले शादी उसने बताया ना, आइडिया बताया। अच्छा बस तो उसने पहुंच जाए। भूख है तो रोटी चाहिए, रोटी चाहिए तो नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तो छोकरी चाहिए। जब भूख ही त्याग देगा तो नौकरी नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए तो नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए तो छोकरी नहीं चाहिए। ये हमारा दादा का निशानी है, चिलमा की चिपका देता था ऐसा। जब तक और जलता था तो जब तक नहीं पीता था, जब सूख जाता था तो पीता था। 1 2 3 4 5 6 अनेक जगह है, वो आगे चिपका देता था। वो गांजा पी के ऐसा रख के जल देता था, इधर उधर देखता था नहीं है तो मैं जाके ऐसा था फू करता था, वो आगे जब चिपका देता था, जैसा चिपकाया वैसे निशानी पड़ते थे।
बड़ी चिलम का बड़ी निशानी है, छोटी चिलम का छोटी निशानी है। क्यों ये गिटक जो होता है ना, ये गिटक गर्म हो जाता है, इसमें गिटक आता है, वो गिटक गर्म होता है, वो जाके चिपक जाता है तो साली जहर हो जाता है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, जहाँ बोले वहाँ चिपका देता था। 1962 में गांजा चालू करा, जब 12 आना वाला गांजा था। अभी तो ना खांसी है ना खूटा है, तो ऐसे ही है। जब भी वही हड्डियाँ है, 1962 में भी वही हड्डियाँ है, अभी वही हड्डियाँ है। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, है ना। 1962 से अभी तक तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ये हीरो होंडा कंपनी मेरे को गाड़ी दिया था। वो गाड़ी चलाते चलाए कितना 60-70 किलोमीटर घूम रहा है। एक बकरी को, एक छोटे बच्चे को बचाने की तरफ से मेरे हाथ टूट गया। उसके बाद वही मैं डॉक्टर का दवा लिया। उसके बाद ना कोई मेडिसिन है, ना कोई सर दुखा, ना कोई कमर दुखा, ना कोई पैर टूटा। जब हाथ टूट गया, ऐसा हाथ उड़ा तो दर्द दे रहा है कि भी मैं दर्द को संभाला। 3 इंजेक्शन मेरे को नींद के दिया, जब भी मेरे को नींद नहीं लगा है, जब भी वो हाँ करता था। जब जाके कोई चिल्ला के सुंगा दिया, जब जाके मैं बेहोश हुआ। हम लोगों में 2 जाते हैं, एक साधु है, एक स्वाधु है। साधु जो है त्यागी होता है, वो कोई चीज़ नहीं है उसके बाद, लेकिन सब चीज़ उसके बाद भरा भरता है। एक साधु होता है, गृहस्थी को कथा बता के, पूजा करा के, संस्कार दे के, ये करके वो करके सब इकट्ठा करता है। उसमें औरत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। और जो हम लोग का साधु है, सन्यासी है, तो हम गुरु महाराज के चरणों में हम जब नंगा हो गए, दिगंबर मंत्र पढ़ के हम लोग नागा बन जाते हैं। उस टाइम में औरत और दौलत को 5 हाथ पीछे रखते हैं, लेकिन बिना औरत का, बिना दौलत का काम ही नहीं चलता है। लेकिन हमारे आंखों के सामने नहीं रहती, हमारे पीछे रहती है। और जो साधु है, जैसे आशाराम बाबू है, ब्रह्मचारी है, और कोई बाबा लोग है, ऐसा तो शिव शक्ति का जोड़ हर है। शंकर जी भी शादी करा, शंकर जी कैलाश में बैठ गया, पार्वती पर्वत में भेजा है। राम जी शादी करा, लेकिन बगल में रखा है। शिव जी राम जी को बड़ा मानता, राम जी शिव जी को मानता, उनके भी औरत है, इनके पास भी औरत है। इन्हों अपने राम जी अपने बगल में रख के बैठा है। जो साधु है, जो साधु है तो त्याग करके बैठा है, औरत की शादी करके भी त्याग करके रखा, यही फर्क है। जब क्या है 1960 से 1970-75 तक 25 साल 30 साल तक तो ब्रह्मचारी फिर भी पालना था। ऐसा तो 1940 तक, 1950 तक बोलते कि भाई 40 तक 45 साल तक, 40 साल तक 35 साल तक ब्रह्मचारी है। जब मैं जन्म लिया 1940 में, 1960 तक मेरी होश है कि 22-24 साल 25 साल तक ब्रह्मचारी पालन करते भी थे, लंगोटा बांधते भी थे, कसरत भी करते थे। उतना औरत दौलत जो है। ये टीवी निकले बाद से 1980 के बाद में खस्सी बन गए। जब से 10 साल के बच्चे को बोले सेक्स क्या चीज़ है मालूम पड़ जाता है, लेकिन 70 से पहले नहीं मालूम था सेक्स क्या होता है, सेक्स की क्या चीज़ है, सेक्स की वासना क्या है। जब भी शादी करके भी लाए गए तो औरत को 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में दबा बोलती थी, तेरा पति है रे, वो काम करके आया, कोई टूका जरा हाथ पे दबा जा बोल के भेजते थे। उठे में घंटा 2 घंटे के लिए उसके बाद रख के उसको फिर बुला लेते थे। आज का 24 घंटा अपने बगल में लेके सो रहे हैं। जितना हम लोग का माँ को प्यार नहीं करेंगे, उतना अपनी औरत को प्यार करके रख दे रहे हैं। क्यों? माँ की जगह माँ बड़ी है, औरत की जगह औरत भी है, बहन की जगह बहन है। सांचा तो एक ही है। हमारा जबान लगा एक है तो सारा जगत एक है। हमारे जबान लगा मान लगा तो हमें, जब तक हम 22 साल तक तो हमारे को शौक नहीं था कि औरत क्या चीज़ था। नंगे तो घूमते थे 15 साल तक, 12 साल तक तो नंगे घूमते थे। हम लोग जब नया साधु बनने बाद में हम लोग को भजन करने में कभी औरत के पास जा रहा है, कभी धन के पास जा रहा है, कभी बिल्डिंग में जा रहा है, कभी घर में जा, मन चंचल हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें गांजा नहीं, हवा है, भजन करने की दवा है, उनमें गांजा हम लोग को पिलाने से क्या मन एक शुद्ध हो जाता है। हमारे एक साधना चाहिए, साधना चाहिए, कुछ ना कुछ साधना चाहिए। साधना के बिना कोई काम नहीं करेगा। आत्मा तो शरीर है, शरीर है तो आत्मा है। एक साधना चाहिए। साधना चाहिए। हमारे गुरु लोग क्या करते हैं, गांजा पिलाने से तो शुद्ध हो जाता है। सुनने के बाद क्या वो भजन, गांजा ऐसा गांजा नहीं, हवा है, भजन करने की दवा है। गांजा पिए बाद काम करे तो काम करते रहता है, भजन का तो भजन करते रहता है, बोलता तो बोलते रहता है, रोता तो रोते रहता है, हंसता तो हंसते रहता है। एक दास में निकलता है। गांजा मांगे भांग, गांजा मांगे घी, भांग मांग रहे रबड़ी, शराब मांगे जूते, मन चाहे पी।
तो शराब पिए बाद भी उठ नहीं सकता, फिर भी औरत को पकड़ने के लिए कोशिश करता है। जब गांजा पिए बाद नंगी भी औरत जाएगा तो वो सुंदर करके देखता है, लेकिन ऐसे झुकते रहता है। इतना फर्क है। गांजे के एक साधना के लिए हम लोग का गांजा पीते कि अपने मन को जरा कंट्रोल कर लेते। जैसे हम लोग अभी भजन करने के टाइम में कभी ओहो मेरा टेलीफोन नहीं आया, ओहो मेरा वो नहीं आया, मेरा ये नहीं हुआ, ये मेरी औरत खाना नहीं बनाई, मेरी बहन वो नहीं करी, ये जैसा कल्पना, ये हम लोग का गांजा पीने से क्या होता है, हमारा मन तो शुद्ध हो जाता है। जो शरीरों में जो रंग है वो रंग को शुद्ध कर देता है। और शुद्ध करे बाद में जरा इसको बांध दे रहे इधर कोने पे, इसको ये डंडे को, है ना। जब वो जो गांजा पीने से शरीर शुद्ध हो जाता है, उसके बाद कोई नशा नहीं लगता है ना। गांजा पीने से हमको एक साधना हो जाता है। साधना में हमको उसके बाद पियो ना पियो, कोई चले लोग पीते, कोई कुछ लोग छोड़ भी दिए। साल 2 साल 12 साल हमारा पहला तपस्या था 12 साल का, अभी 3 साल का तपस्या है। हम लोग जैसा नासिक हिमाचल है या नासिक पंचवटी है या बद्रीनारायण के जंगलों में हम लोग को भेज दिया जाता थी। जब 12 साल तक हम लोग जंगलों में जाके तपस्या करते थे। अभी 3 साल का तपस्या है, क्यों कलयुग है। पहले हम लोग पैदल चलते थे, क्यों गृहस्थी साधु को चाहिए, साधु गृहस्थी चाहिए। ये गृहस्थी आता है बाबा पीपीओ बोलता है, वो बबूची लगाता है, वो 2 पैसा कमाता है। साधु बिगाड़ने वाले 2 है, एक औरत एक दौलत, जो बिगाड़ती है ना। जब साधु के बाद गृहस्थी आता है, उसको टीका लगा देता है, उसका धंधे में 2 पैसा कमाई होता है। दूसरे दिन आता है फूल पत्ती चढ़ाता है, फिर और धंधा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद उसको जैसे जैसा बढ़ते रहेगा, पहले वो चावल ला के देता, उसके बाद कपड़ा ला के देता, उसके बाद धन ला के देता, उसके बाद अपनी औरत को भेज देता है कि भैया सेवा करने के लिए। फिर आगे वो माया में फंस जाता है। जब साधु बन जाता है, जब त्यागी है, पैसे को लाया नहीं लिया, जितना चाहिए उतना लिया, उसका तो साधु बनने में ये क्या है, एक पावर होता है, एक शक्ति देता है। तो हम लोग अपने काम जो को हम क्षेत्र नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग को इंद्रिय तोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम सेक्स नहीं कर सकते। उसके बाद हम चाबी बना के उसको लंबन बना ली, चाहे जितना चाहे उतना घुमा लो। अब इसमें नशा है तो घूम नहीं सकता, ये नशा टूट जाने से लंबन हो गया, जावल वहाँ घूमती है ना। वो जो हमारे नशा तोड़ दिया जाता। उसके बाद रात भर में भी लड़के हमारे तेल भी लगा के मसाज भी कर देगी, तो हमारा ऐसे कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई औरत तुमको जरा भी हाथ लगाए तो फटाफट खंभा बन जाता है। क्षमा वो नहीं है, क्यों मन को मारे। जब इंद्रिय को मारे बाद तो मन को मारना ही पड़ेगा। जब प्यास नहीं है तो कुएं के पास जाने का जरूरत ही नहीं है। जब भूख ही नहीं है तो रोटी खाने का स्वाद ही नहीं आया। जब निद्रा ही नहीं है तो बिस्तर मकबल का डालो या तो जमीन पे बिठाओ, सवाल ही नहीं है। जब ठंडी नहीं है तो कपड़े का कोई शौक ही नहीं है ना। इसके लिए साधु लोगों को जब हम लोग का नागा बाबा बनने टाइम में हम गुरु महाराज को दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा में हमारे पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, ATM कार्ड नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो हम लोग गुरु महाराज को दक्षिणा देना चाहिए। तो हम लोग एक तपस्या करके हम लोग एक शब्द खर्चा करते हैं कि मैं 12 साल नंगा रहता हूँ, 12 साल भभूति लगाता हूँ, 12 साल उड़ता बहाना रहता हूँ, 12 साल खड़े से नहीं रहता हूँ, 12 साल फरारी रहता हूँ, 12 साल मोह नहीं करता हूँ। कोई ना कोई हम लोग गुरु महाराज को दक्षिणा में छोड़ देते। तो हम लोग उसको डर के मारे हम 12 साल जिस कर्म में हमको प्रॉमिस करे, उस कर्म से चलने से हमको कुछ फल मिलता है।
अभी कौन कैसा राजू है, कौन का नाती चला, कौन कुर्बाई है, कौन क्या, अभी ध्यान लगाना चाहिए। उस हिसाब से अपने बाजार में चलना। रहनी बहनी सैनी 3 काम यहाँ सीखने को मिलता है। झाड़ू, बर्तन और गाली 3 चीज़ अपने पास है ही है। पहले झाड़ू मिलेगा, उसके बाद बर्तन मानी मिलेगा, उसके बाद गाली या मार मिलेगा। ये 3 चीज़ हमारे पास ही है। रहनी बहनी सैनी 3 चीज़ हमारी भी। खांसी करूँ घुर्रा करूँ, ये चीज़ मैंने खांसी होता खुरा, खांसी करूँ घुर्रा करूँ, फिर भी नहीं मरे तो मैं क्या करूँ। एसपी गाड़ी तेरे को जगह ही नहीं मिला कहीं। दो जी सरकार लारी लार कार सुबह से शाम कर कोई करोड़पति गान में 2 वक्त थूको। हाँ क्या ये पानी कौन पिलाएगा? मेरा नाम केदारपुरी है। मैं पाली जिला में राजस्थान में रहता हूँ। मेरे गुरुजी किशनपुर जी महाराज है। मैं कोटा का हूँ। वैसे तो मेरी जन्मभूमि कोटा की है और मैं मेरे गुरुजी को भेंट करा हुआ हूँ। छोटा सा 5 साल का आया हुआ। कोई ने पता नहीं ऐसा कि क्या है, अब भगवान की मर्जी थी तो मैंने भक्त बनने का। कोई ऐसा मेरे कर्म में लिखा हुआ था तो मैंने आज ऐसा कर्म मिला है मुझे जो। और मेरे गुरुजी मेरे लिए बहुत चाहते थे और बहुत उन्होंने मेरे को 5 साल का लेके आए थे मेरे को। और मेरे माता पिताजी ने मुझे अब पता नहीं भगवान की क्या कृपा जैसी जो माता पिता ने भेज दिया मुझे, कोई पता नहीं। अब माता पिता खूब भी कहता है बेटा हाँ मिलने पर, मैं कह देता हूँ आपको मिलना हो तो आ जाना, नहीं तो अब अच्छा लगता है। अब क्या है मुझे, अब कुछ है तो नहीं, साधु बनने बाद में क्या है। बिल्कुल है, बच्चे की तरह पाला है, ऐसे जैसे कि वो बंदर रखता है ना बच्चे की चिपका के, ऐसे पढ़ना तो है। क्यों, मेरे गुरुजी थे वो पढ़े लिखे थे तो कोई भी काम विदेश जाना, बाहर जाना, कहीं पे भी जाना तो वो पढ़े लिखे थे, जब जा सकते थे। और अपन ही ऐसे पढ़े लिखे होंगे तो अपन भी जा सकते नहीं। महाराज बोलते मेरे को और बच्चे को मार भी देते पर मेरे को हाथ में। माता पिता ने स्वयं स्वेच्छा से भेंट किया। मेरे परिवार में है, मेरे मामा मामी सब है तो वो सब कहते हैं कि आ जाओ अपने मम्मी जी के पास, आ जाओ अपने घर में। कि आगे जाकर के भविष्य में तरक्की करेगा। भविष्य में इस संत से बढ़िया तो ये सब कोई पोस्ट ही नहीं है। अब मेरे को यहाँ पे काय का दुख है, मेरे ये सब बैठे सब खाने पीने का सब है तो और काय का दुख है। अभी मेरे को खट्टा मीठा लाचार पतार कोई हाथ नहीं लगाई है ना। अच्छा उसके बाद में जैसा मैं पहला बोला तुम तुम्हारा पति वैसे रहेंगे वैसे सोएंगे, है ना। हाथ भी नहीं लगाएगी, नज़र भी नहीं मारेगी। और जो खट्टा खाएगा तो वहाँ से उससे 5 हाथ दूर बैठ के काम करेगी। ओके मैं उपाय में बताएगा मेरे भाभी तेरे भाभी मैं यहाँ पूजा में करेगा भी हमारे के रोज में मैं घर बिठा देगा। मम्मी को दे कितने वापर वेला भी दे बता, जल्दी बताना ना, नाम तो बता दे। अच्छा बता दे क्या नाम है बता। नहीं पूरा नाम बता। महंत नागा बाबा मनी मैत्री बोल जोर से बोल बोलो। महंत नागा बाबा मनी महेशगिरी। माँ देख के बोलना ना। लो
बोल बात देख के बोल। नागा बाबा मॉर्निंग वेस गिरी नागा गुरु का नाम मॉर्निंग वेस मंगल गिरी क्या नाम है उसको और जब दिखाना चल खिलौना ले आएंगे। चल वो लाएंगे क्या जीप चक्री घूमती ना एक गाड़ी वाला चक्कर मारती है वो लाना है। चलो फिर लगे बाबा को बोला नहीं हाथ नहीं डाला और दवा लगाया नहीं लगाएंगे दवाई मैं वो ये दे देगा क्या नाम है तुम्हारा लक्ष्मण रेखा देगा उसको बड़े करके बांध देने का कच्चा वाला आता ना उसके कच्चा वाले से कुछ नहीं होगा कच्चा वाले से कुछ नहीं। क्या लेगा ये लेंगे लगाना ये लगाना है जैकेट भी लगाना पड़ेगा। हाँ मांट नागा बाबा मॉर्निंग वेस गिरी नागा बाबा मॉर्निंग वेस 1 साल 1.5 साल का बच्चा हमको रास्ते में मिला था इसका प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ जाके पुलिस वाले बोले बाबा जी इनको लेके चले जाइए किसका है नहीं मालूम है क्यों परेशान हो जा रहे हैं आपको चाहिए तो लेके जाइए। मुझको बोला हम लेके आ गए हम लोग पाल लिया हमारा नानी जेला पाला है। मेरी गाड़ी में कलकत्ता में काठमांडू में मनी महल में अमरनाथ में हर टाइम में ये हम लोगों को मिलते रहता है। गाड़ी छपकन जाए को हैं नागलों का स्कूल नहीं होता है आवर्सो लेगोसो देशो दो आवर्सो समझता हूँ ये जो आदिवासी है इधर से मेरी बात सुनो वो उन लोग का बच्चा है वो 1.5 साल का बच्चा था वो छोड़ दी और चल दी और उसके बाद में हम लोगों को रास्ते मिला तो लिया है। जरा माइंड जरा कमजोर है अब बोली साफ नहीं है चाय पी इतना नहीं पता नहीं इतना नहीं कितना पिएगा जे इतना लेगा जी आधा किलो लेगा रे तो 4-5 घूम लेगा थोड़े लेगा 6 घूम 3 घूम देखते कड़ी कॉलम को हो जाता है कॉलम में कम जाता है महाराज रहता है वहाँ पे स्थान है हनुमान मंदिर आवेदन और तेरा गुरु का नाम मेरा गुरु का मंगल नाकल 9 साल का ये बाल है 9 साल की जटा है 9 साल से हम लोग का काटे भी नहीं हम लोग सन्यासी बने बच्चों को बाल नहीं काटते है ना। जब महाराज को दक्षिणा देना तो इसमें बाल दे दीजिए कोई मौसीदारन है कोई बड़े बोलता था कि जाता तो मानता नहीं। अयो रामा आदत चुप जी अरे बीच में बोलो तो जी चाय पियो रे तुम चाय पियो रे बाद में बोलो रे जाता नहीं अयो रामा तान्ना क्या करते जी कन्नड़ रजनीकांत या यू मीट रजनीकांत ये सारे लोग काम क्या काम नहीं हो रहा
ऐसे चलता है। मोटर वाला चाहिए? हाँ कितना देर जाऊंगा? हाँ ये चाहिए। लाइट वाला? हाँ लाइट कहाँ गए बाबा जी? तो वाला ये मेरा फोटो वाला है। इसमें बैटरी डालना पड़ेगा। हाँ बैटरी वो पेंट वाला साइड चलेगा ये वाला। शरीर भी नहीं है जो आपको 500 से आपको पहले रेट 700 को मोल भाव नहीं करना है। Okay, you happy man? Good. You happy? No, ये कैरी में ये नीचे ये सारा गलती आइए पुरी बाबा जी महाराज, आइए सरकार, आइए मालिक, आइए। ये हमारे बाबा जी है जी, पुरी बाबा जी है। तरकारी है, पूरी नहीं है। पूरी है, तरकारी नहीं है। अब पूरी है तो सर बासी पूरी है, तरकारी साथ नहीं कर। ये हमारे एक नेपाली बाबा के नाम से मशहूर है। नेपाल में पहले आते जाते रहते थे। अभी एक हमारे गुरु भाई जी है, ये भी हमारे बड़े गुरु भाई जी है। पहले इनकी चवन्नी सस्ती थी, अभी चवन्नी इनका महंगा हो गया, बहुत भारी हो गया इनका दाम। अभी बड़ों में नाम लिखा गया है। नो प्रॉब्लम, नो वन, नो प्रॉब्लम, 9 प्रॉब्लम बैक साइड। फैमिली प्रॉब्लम, चिल्ड्रन प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, स्पीड प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, एवरीथिंग प्रॉब्लम, वन नो प्रॉब्लम, नाउ लुकिंग नो प्रॉब्लम, हैप्पी। क्या पूछ ले एक मिनट I get everything. Goodbye, bad man. More goodbye, bad man. Right. ஜாலியா இருக்கல क्या बोल रहे नहीं बोल रहा है। पीछे जाओ, पीछे ओ बड़े बाबा क्या बोल रहे हैं? बैठ जाना, बीच में बैठ जाना, मजा आएगा ना। हम बीच में बैठ जाना, मजा आएगा ना। हमारे बराबर बैठे मतलब क्या हुआ फिर रखो भाई, ये माई है हमारी। एक मिनट, इसका हमने टाइटल रखा हुआ माई। अरे आइए महाराज जी, आइए देवता, आइए महाराज, आइए इधर, आइए पधारिए। दशनाम तिलकपुरी बाबा ने बादशाह की छाप पाई, ध्वजा पात का निशान बीच नौबत बजाई। गंग दरियापुरी के पंच परिवार हैं बहुत भारी, रचे मठ चारों मढ़ी आबधारी। गंग दरियापुरी, कच्छ दरियापुरी, मच्छ दरियापुरी, आदि 12 दरियापुरी, जड़भर दरियापुरी, मौज दरियापुरी, सहस दरियापुरी, कमल नैन लहर दरियापुरी, भगवान दरियापुरी, भंडारी हनुमंत दरियापुरी। मेघनाथ पारनाथ की मणि शोध गाऊं, मणि 13 और 1400 भी बताऊं। मणि 13 और 14 के बीच विराजे बौद्धनाथ महाराज गादी विराजे। भोदूनाथ भावनाथ ने भोदू भांग के मट्ठ बांधे, 1.25 शेर लंगर जिन्होंने चलाए। दुर्गानाथ ने निप्पाण की छाप पाई, संध्यानाथ ने इंझार पूजा लगाई। कुमस्तनाथ मौनी दिगंबर कहाए, झिलम टोप बख्तर जिन्होंने आडंबर चढ़ाए। रामदत्त ने सत्य की रीत बांधी, 2 ब्रह्मनाथियों की एक गादी। गेलानाथ मढ़ी है जिनका बधीता, अनभानंद बैरागी से जंग जीता। माननाथ गुदड़ भय जोग जानी, बारिंद्रनाथ की मढ़ी है चौकस बखानी। रतननाथ रतन से जोत लाए, सागरनाथ शंकरनाथ नखी मढ़ी आप बांधी। गए राव राणा दिए दान हाथी, जति गरीब नाथी। गेला 4 माही जिन्होंने जति और जोत की शाखा चलाई। चंदननाथ बोदला, श्यामगिर सवाई, घोड़ा को छोड़ मियाँ की मस्जिद दौड़ाई। दौलताबाद शहर की कब्र उड़ाई।